Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Um, Here is the fourth lecture of our course Code of Ethics for Physical Scientists. And today's topic is about research ethics. Um, Research, however novel its discoveries, is only of any value if it is carried out honestly. We cannot trust the results of a research project if we suspect the researcher have not acted with integrity. Although it might be easy enough to take shortcuts or even to cheat, it is really not worth it. Not only will your research be discredited when you are found out, but you will suffer severe penalties and humiliation. Um, the main thing is about the research is कि जब हम research करते हैं तो definitely the first thing which comes in mind is the hard working, passion, and in other words, your honesty. So it is a simple matter to follow the clear guidelines in citation that will prevent you being uh, accused of passing off other people's work as your own, called plagiarism. जिसको हम plagiarism कहते हैं वो ये है कि किसी दूसरे बंदे का काम जो है आप उठा के अपना काम बना के उसको पेश कर लें. So that is a very negative thing, and इसके जो outcomes होंगे वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं और डेफिनेटली नेगेटिव ही होंगे और आपको जो है पेनल्टीज भी जो है वो लग सकती हैं. यू कैन बी ब्लैक लिस्टेड एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर. तो हमेशा जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए रिगार्डिंग योर रिसर्च. In fact, to refer or to quote other people's work is seen as a virtue and demonstrates that you have read widely about your subject and are knowledgeable about the most important people and their ideas. So आपको जो है बहुत ज़्यादा लिटरेचर की ज़रूरत है. आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस लेवल के ऊपर कि आप जो है आपके पास जिस फील्ड ऑफ रिसर्च में जिस स्पेशलाइजेशन में आप काम कर रहे हैं आपके पास उसका एक जो है वसी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट ब्रॉड नॉलेज it will be very difficult for you to carry out research in any particular subject. So working with human participants in your research always raises ethical issues about how you treat them. तो अगर आप किसी रिसर्च ग्रुप में जो है वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्च हेड और जो आपका जो है मेंटोर है जो सुपरवाइज़र है कि वो किस तरह से लोगों को जो है वो ट्रीट करता है. पीपल शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट which has many implication for how you deal with them before, during and after the research. तो जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं किसी टीचर के अंडर काम करते हैं रिसर्च करते हैं तो उसकी जो है डेफिनेटली कोई एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं. उसको जो है वो डिवाइस किया जाता है उसकी एक ख़ास SOPs बनाई जाती हैं और हर एक को उसके जो है काम के लिहाज से क्रेडिट देना भी जो है वो ज़रूरी है. अगर आप जो है किसी को जो है वो इनजस्टिस करेंगे तो उसमें जो है फिर डेफिनेटली देयर विल बी अ डिज़ास्टर. सो एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु ओवरसीज रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैव स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस. सो डेफिनेटली हमारा जो कोर्स है इसमें हम जो है वो रिसर्च एथिक्स के हवाले से बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं. तो हम जो है उसमें जब भी जो है कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एथिकल गाइडलाइंस दी जाती हैं ताकि उनको फॉलो करके हर किसी को उसका जो है जितना जो उसका वो बनता है जो 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 जिस लिहाज से उसका मैंडेट बनता है वो उसमें रहे और नो इंटरफेरेंस शुड बी देयर एंड सो मैनी अदर थिंग्स. However, the issue can become quite complicated with no clear-cut solutions. अगर कोई वो नहीं है और haphazardly आप काम कर रहे हैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर, so that will definitely cause a problem.
It is therefore important that you consult with others, especially advisors appointed for that purpose. So that is very important aspect of a research project or research um, carrying out by any educational institution. So even if you are not using human participants in your research, there is still the question of honesty in the way you collect, analyze, and interpret your data. By explaining exactly how you arrived at your conclusion, you can avoid accusations of cover-ups or false reasoning. There are two aspects of ethical issues in research. अब डेफिनेटली जब आप काम करते हैं आपके पास एक जो है वो क्या आप जो है नॉलेज जो है वो गैदर करते हैं, आप कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, एंड देन आप अगर कोई जो है वो प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई सैंपल आते हैं, आप उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करवाने के लिए आप उनका जो है वो डाटा आपको मिलता है, और डाटा मिलने के बाद आप उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप एग्जैक्टली वही डाटा जो है वो जो आपने काम किया है उसको जो है वो रिपोर्ट करते हैं, देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर आप उसको जो है रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, आप उसमें जो है वो चेंजेस करते हैं, आप उसमें जो है वो डाटा जो है उसको उसमें से जो है वो जो ओरिजिनलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं, तो फिर जो है आप ये जो है बहुत ही जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है फॉर carrying out research. There are two aspects of ethical issues in research: the individual values of a researcher relating to honesty and frankness and personal integrity. तो पहले भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि जो है इसमें जो है ईमानदारी का जो एक जो एलिमेंट है और जो ऑनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा एक जो है वो रोल प्ले करते हैं। द रिसर्चर्स ट्रीटमेंट ऑफ अदर पीपल इन्वॉल्व इन द रिसर्च, तो ये एथिक्स में आता है किस तरह से जो है वो डील करता है रिलेटिंग टू इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोमिटी जो है एंड कर्टसी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस हवाले से जो है उसमें हमें ये कोड ऑफ एथिक्स को जो है हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है हम किसी भी हवाले से कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है एक रिसर्च को जो है वो कैरी आउट करें, और उसके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को जो है वो या जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं उसको जो है वो पब्लिश करें। और दैट विल डेफिनेटली उसमें जो है आपको जो है वो ये नहीं है कि आपको जो है शुरू से ही जो है वो सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। सो योर फेलियर कैन आल्सो बी योर सक्सेस इन फ्यूचर, because you learn a lot from your failure too. So ethics जो है उनको जो है हमें देखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। उसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशंस एंड एथिक्स कमेटीज़ के हवाले से, all organizations that are involved in research involving human participants have set up a code of practice for their researchers. To see typical example of these type of guidelines, you can refer to the web page produced by the British Educational Research Association, जो कि आप ये देख सकते हैं, उसका ये लिंक है, आप इसको जो है वो खोल के उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगे, और द ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, आप इसका लिंक जो है वो देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ विल हैव देयर ओन कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, तो यूनिवर्सिटीज़ के अपने जो हैं वो SOPs होती हैं, उसके ऊपर जो है वो अमल करवाते हैं, एंड सो ऑन टू कैरी आउट रिसर्च। द रोल ऑफ एथिक्स कमेटीज इज़ टू ओवरसी द रिसर्च कैरिड आउट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन in relation to ethical issues. It is they who formulate the research ethics code of conduct and monitor its application in the research carried out by the member of their organization. Applying for the ethics approval inevitably involves filling in forms. तो definitely मुख्तलिफ जो है जो educational institutions हैं या कोई भी organization हो, उसमें मुख्तलिफ जो है offices होते हैं। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बात करें तो हमारे पास जो है एजुकेशन को जो है वो मॉनिटर करने के लिए क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है, और उसके अलावा जो है हमारे पास जो रिसर्च के हवाले से ऑरिक है, जिसमें जो है उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको जो है वो वर्कशॉप करवाए जाते हैं, आपको आगाही मिलती है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो रिसर्च के हवाले से हैं
आपको गाइडलाइन जो है वो मिलती है. तो डेफिनेटली यू लर्न much, and these offices work in collaboration with, in coordination with the researchers or a group of research जो है. उसके अलावा honesty in your work. Honesty is essential not only to enable straightforward above board communication, but to engender a level of trust and credibility in the outcomes of the research. So ईमानदारी का जो पहलू है वो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा उसका एक एज ए होल जो है हमारी लाइफ में जो एक ऑनेस्टी का जो जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है. आप अगर ऑनेस्ट हैं सो यू विल बी आप बहुत डिफरेंट होंगे लोगों से, एंड डेफिनेटली आप जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गेन कर सकते हैं बजाय इसके कि आप जो है झूठ, शॉर्टकट्स एंड सो मेनी अदर वेज जो हैं उनको जो है वो आप फॉलो करें. This applies to all researchers, no matter what subject they are investigating. तो ये जो ईमानदारी का पहलू ये हर जगह पे जो है, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में जो है, एस्पेक्ट्स में हम इसको देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें अमल करना भी चाहिए. Although honesty must be maintained in all aspects of the research work, it is worth focusing here on several of the most important issues. Intellectual ownership and plagiarism. So unless otherwise stated, what you write will be regarded as your own work. The ideas will be considered your own unless you say to the contrary. The worst offense against honesty in this respect is called plagiarism. तो अगर आप जो है किसी के जो है काम को अपना काम जो है वो शो करेंगे, so that will be plagiarism. आप जब तक जो है उसकी प्रॉपर साइटेशन नहीं करेंगे, साइटेशन ये है कि हम जो है उस जिस रिसर्च आर्टिकल से, बुक से या कहीं से भी जो है हमने ये मवाद लिया है तो उसको जो है हम प्रॉपरली जो है वो साइट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है हम उसका रेफरेंस देते हैं. तो वो जो है एक प्रॉपर तरीका है. डायरेक्टली कॉपिंग someone else's work into your report, thesis, etc., and letting it to be assumed that it is your own जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है पहलू है, और इसके बहुत नेगेटिव outcomes हो सकते हैं for your future work and education, etc. Using the thoughts, ideas, and works of others without acknowledging their source, even if you paraphrased into your own words, is unethical. हम ये करते हैं कि जब जो है हम कोई भी असाइनमेंट, कोई जो है कोई असाइनमेंट या थीसिस या रिसर्च वर्क जो है एमफिल का या पीएचडी का, उसमें अगर हम इवन पैराफ्रेजिंग भी जो है वो करते हैं और उसको जो है वो हम उनका रेफरेंस नहीं देते जहाँ से वो चीज़, जो पैराग्राफ, जो लाइन, जो भी चीज़ हमने जहाँ से ली होती है, अगर हम उसको जो है वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो ये भी जो है अनएथिकल है, और ये जो है एक नेगेटिव है रिगार्डिंग योर रिसर्च या कोड ऑफ एथिक्स के हवाले. इक्वली सीरियस इज क्लेमिंग सोल ऑथरशिप ऑफ वर्क विच इज इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन और घोस्टिंग. सो अगर आप जो है किसी एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो खुद ले जाते हैं और उसमें बहुत सारे दूसरे लोगों ने काम किया होता है, तो ये भी जो है ये जो है बहुत ज़्यादा सीरियस एक जो है वो इशू है, और ये अनएथिकल है, और that is not only your contribution definitely, so you have to give कि हर एक बंदा जो उस ग्रुप में काम कर रहा है उसको आपने इक्वली जो है वो ट्रीट करना है, एंड सो ऑन. सो एक्नॉलेजमेंट एंड साइटेशन की अगर हम बात करें तो जैसे पहले मैंने कहा कि जब भी आप जो है कोई पैराग्राफ लेते हैं, कोई लाइन लेते हैं, कोई आइडिया कोई भी चीज़ लेते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू एक्नॉलेज एंड साइट दैट थिंग. ऑब्वियसली इन नो फील्ड ऑफ रिसर्च कैन यू रिलाई एंटायरली ऑन योर ओन आइडियाज़. तो जब भी आप कोई काम करते हैं, आप डेफिनेटली कोई इवन असाइनमेंट बनाते हैं, आप जब थीसिस लिखते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम एमफिल के थीसिस की बात करें तो उसमें रिजल्ट एंड डिस्कशन का जो चैप्टर होता है वो आपका अपना वर्क होता है, लेकिन उससे पहले जो इंट्रोडक्शन है, जो लिटरेचर है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो आप जो है वो कहीं ना कहीं से लेते हैं, बिकॉज दैट वर्क इज़ मच रेलिवेंट टू योर फील्ड ऑफ रिसर्च या जो काम आपने किया है.
सो जब आप जो है चीज़ कहीं से लेते हैं, सो concepts and theories you can avoid accusations of plagiarism by acknowledging the source. तो हमें acknowledge करना चाहिए, हमें उसको जो है वो cite करना चाहिए, और हमें जो है वो क्या करना चाहिए कि although there are several well established citation method, बहुत सारे तरीके हैं, all consist of brief annotations of or numbers placed within the text that identify the cited material and a list of references at the end of, जैसे मैंने पहले कहा कि आखिर में आप जो है उसका reference दे देते हैं. These methods of reference cater for direct quotations or ideas etc. from the work of others gathered from a wide variety of sources. तो आप मुख्तलिफ जगहों से जो है ऑनलाइन लेते हैं, आप जो है बुक्स वगैरह, जर्नल है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, टॉक्स हैं, इंटरव्यूज हैं, मुख्तलिफ वो हो सकते हैं. तो यू हैव to cite that thing, and that is the proper way and should be meticulously used. You should also indicate the assistance of others and any collaboration with others, usually in the form of written acknowledgement at the beginning or end of the report. तो आप जो है किसी के साथ अगर कोई collaboration है तो आप उसको acknowledge कर सकते हैं. Responsibility and accountability of the researcher. कि अगर हम बात करते हैं तो apart from the correct attribution, honesty is essential in the substance of what you write. Actually, we have, if you have an accurate description and then you are required of what you have done, how you have done it, and after that, the information you obtained, the techniques you used, and the analysis you carried out, and the results of experiments. A married जो है of results concerning every part of your work. So अगर हम responsibility और accountability की देखें तो हम जो है हमें ईमानदारी, correct attribution जो है वो देनी चाहिए जिसकी है, और उसके अलावा जो है कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, आपने कैसे कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन की है, एंड कौन कौन सी टेक्निक आपने यूज़ की हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च में, और जो एनालिसिस आपने जहाँ जहाँ से करवाए हैं, कैसे करवाए हैं, कब करवाए हैं, एंड द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ये जो है पूरा का पूरा एक जो है सेट ऑफ क्या कहते हैं कि नॉलेज है, और ये डेफिनेटली एक जगह से नहीं हो सकता. तो मुख्तलिफ लोग आपको जो है वो कोलैबोरेशन होती है आपकी. उसके अलावा यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है, हाउ यू यूज़ लैंग्वेज हैज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस when doing and writing up research. You should aim to be as neutral as possible in the way you use terminology involving people who and what they are and what they do. You will have to use acceptable terminology, and you need to be constantly aware of the real meaning of terms and their use within the particular context. So जो हमारे पास ये सारा हमने अभी डिस्कस किया है, तो उसमें सबसे जो मेन अगर हम जो है उस पर बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है, ऑनेस्टी है, और जो है एट्रीब्यूशन है, एंड सो ऑन, बहुत सारी जो है वो दूसरी चीज़ें हैं जिसको हम जो है वो देख सकते हैं. सो दैट इज़ the lesson of the day, and you can learn a lot from it. So ईमानदारी को अपना जो है वो शेवा बनाएं, and then inshallah it will be fine.